Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, today I will start the chapter number 2 of NCERT textbook class 12. The chapter is inverse trigonometric functions. In class 11 we have studied trigonometric functions and which are defined as follows. Sine function. Sine is a function whose domain is the set of real number and the range is -1 to 1. Cosine function with the domain set of real number and the range is -1 to 1, that is the closed interval. And tangent function with the domain real number difference the set x such that x is equal to twice n plus 1 into pi by 2, where n is belongs to z, where z is the set of integers and to the set of real numbers. Cotangent function, it is a function with the domain set of real number difference x such that x is equal to n pi, where n belongs to z, to the set of real numbers. Second function with the domain set of real number difference x is equal to twice n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z, to the set of real number minus the open interval -1 to 1. And cosecant function is also with the domain set of real number minus x such that x is equal to n pi, where n belongs to z, to the set of real number difference -1 to 1. ओके, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किया है ये सब हम लोग क्लास 11 में स्टडी किया है. तो इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड दैट ए फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल इफ द फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. एक फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना चाहिए. दैट इज द फंक्शन मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन. तो साइन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x, ये भी इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? द फंक्शन मस्ट बी बोथ 1 1 एंड ऑन 2. लेकिन हम लोगों को ये जो ग्राफ मिला है, ग्राफ से क्या देख रहा हूँ? फ्रॉम द ग्राफ वी हैव सीन दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड on 2 with its domain the set of real number. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? if we restrict the domain to the interval minus पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेकर -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 से लेकर -5 बाई 2. ये जो देखिए, जो हम लोग ऐसा करके डॉट डॉट लाइन दिया है, इतना में और इतना में, इसमें क्या हो रहा है? द फंक्शंस इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. हेंस साइन फंक्शन इज इन्वर्टिबल विद द डोमेन व्हाट -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से लेकर 5 पाई एटसेट्रा में. तो इसलिए हम लोग क्या है, देखिए, if we restrict its domain to -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, then it becomes 1 1 and on 2 with range -1 to 1. Actually sine function restricted to any of the intervals -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 etc. is 1 1 and its range is -1 1. Okay, thus sine inverse is a function whose domain is -1 1 and range could be any of the intervals. इसमें से range कोई भी interval हो सकता है and so on. Corresponding to each such intervals, we get a branch of the function sine inverse and the branch with range -पाई बाई 2 to पाई बाई 2. ये जो closed interval है -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 is called the principal value branch. And when we refer to the function sine inverse, we take it as the function whose domain is -1 to 1 and range is -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2. So we write sine inverse, it is a function whose domain is -1 to 1 and whose range is -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2. और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स? क्लोज्ड इंटरवल -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक. ओके, सिमिलरली हम लोग एक कॉस इनवर्स का कॉस एक्स का, ये जो कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ से हम लोग क्या, इसमें से क्या मिलता है?
cos x भी देख लीजिए, ये भी पूरा रियल नंबर में 1 1 एंड 1 2 नहीं होता है, इसलिए इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट किया है. लाइक साइन फंक्शन, द कोसाइन फंक्शन इज ए फंक्शन whose domain is the set of all real numbers and range is the set minus 1 to 1, which is closed interval. If we restrict the domain of cosine function to 0 to pi, then it becomes 1 1 and on 2 with range minus 1 to 1. Now you see from the graph of the cos function, here you see this is 0, 0 में cos x का वैल्यू होता है 1, 2 पाई में भी cos x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. सिमिलरली हेयर -2 पाई में भी cos x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. सो हम लोगों को डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन वी हैव द same image, that is 1. Therefore the function is not 1 1. Since the function is not 1 1 with the domain real number, therefore cos x is not invertible with domain real number. So we have to restrict the domain real number into some intervals. The intervals हम लोग क्या के इंटरवल्स हैं, -π, 0 पाई, पाई बाई 2. देखिए इसमें, देखिए 0 से लेकर पाई, इसमें सीधा ऐसा है, इसमें कोई डबल एलिमेंट्स में और डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम इमेज नहीं है. यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम इमेज नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम इमेज नहीं है. सो ये सब जो ब्रांच है, ये ब्रांच में क्या हो रहा है, कॉस फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो रहा है. देयरफॉर ये सब ब्रांच में क्या है, the cosine function is both 1 1 and on 2. Therefore in this branch, in all the branches the function is invertible. लेकिन इसमें से एक ब्रांच को क्या बोलते हैं, principal value branch, that is 0 to pi. So we write cos inverse is a function with the domain -1 to 1 to the range 0 to pi. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, invertible function with the domain -1 to 1 and whose range is 0 to pi. and a 0 to pi को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है. ओके, तो सिमिलरली हम लोग टेंजेंट फंक्शन के लिए भी देख सकता है, कोसेकेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यू सी द टेबल. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फॉलोइंग टेबल गिव्स the inverse trigonometric function principal value branches along with their domains and range. Sin inverse, it is a function with the domain -1 to 1 and whose principal value branches -π/2 to π/2. Cos inverse, a function with the domain -1 to 1 and whose principal value branch 0 to pi. Cosec inverse, it is a function with the domain the set of real number difference the open interval -1 to 1 to the principal value branch -π/2 से लेकर π/2 difference 0. and sec inverse, it is with the domain set of real number difference -1 to 1 and principal value branch 0 to pi difference π/2. and tangent inverse, it is a function with the domain the set of real number and whose principal value branch is -π/2 से लेकर π/2, but here it is open interval. and cotangent is a function whose domain is the set of real number and whose principal value branch is open interval 0 to pi. ओके, देखिए साइन इनवर्स एंड जो टेन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लीजिए. साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स में सेम है, जस्ट साइन इनवर्स में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, और टेन इनवर्स में क्या है, ओपन इंटरवल है. इसमें -π/2 से लेकर π/2 तक है, इंक्लूडिंग -π/2 to π/2. बट इन केस ऑफ टेन इनवर्स -π/2 एंड π/2 इट इज एक्सक्लूडेड. ओके, अच्छा, नेक्स्ट यू सी कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स at 0 to pi including 0 and pi, that is closed interval, here excluding 0 and pi, that is open interval. Okay, तो
कॉसेक इन्वर्स साइन इन्वर्स का जैसे है, इसमें जस्ट डिफरेंस 0। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो इसीलिए ऐसा करके हम लोग इसको याद कर सकता है, ऐसा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं साइन इन्वर्स एंड कॉसेक इन्वर्स का। -π/2 से π/, इसमें भी -π/2 से π/, साइन एंड कॉसेक इन्वर्स दे आर रेसिप्रोकल। जब साइन -π/2 से π/2 होता है तो कॉसेक इन्वर्स जस्ट इससे 0 माइनस करने से हो गया। ओके, नेक्स्ट और एक है सेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स का रेसिप्रोकल होता है सेक इन्वर्स। कॉस इन्वर्स में 0 to π एंड सेक इन्वर्स में 0 to π, जस्ट डिफरेंस -π/2। ये जो रेसिप्रोकल है इसको हम लोग अगर एक को हम लोग याद कर लिया तो बाकी उसका रेसिप्रोकल को भी हम लोग टेक्निक यूज़ करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नोट, साइन इन्वर्स x शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ साइन x इन्वर्स। ये जो साइन इन्वर्स x एंड साइन x to the power 1, they are not same. Okay, you must remember these two things are not same. In fact, sin x to the power inverse means 1 by sin x, and similarly for other trigonometric functions, sin x to the power -1 means 1 by sin x, cos x to the power -6 1 by cos x. लेकिन sin inverse x is another thing. Okay, whenever no branch of inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function. अगर कोई इन्वर्स में नो ब्रांच ऑफ एन इन्वर्स फंक्शन इज मैंशनड, तो हम लोग को क्या कंसिडर करना है? वो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी को हम लोग कंसिडर करना है। द वैल्यू ऑफ एन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स you must write down on your notebooks. The following table gives the inverse trigonometric functions principal value branches along with their domains and ranges. Sin inverse is a function with its domain -1 to 1, that is closed interval -1 to 1, to -π/2 π/2. It is also closed interval. Cos inverse whose domain is -1 1 to the closed interval 0 to π. Cosec inverse R difference open interval -1 to 1 to -π/2 π/2 difference 0. इसमें देखिए cosec inverse एंड sin inverse का जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है लगभग सेम है, जस्ट कॉसेक इन्वर्स डिफरेंस 0 है, क्योंकि कॉसेक जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसमें जो 0 है 0 यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। -π/2 से लेकर π/2 ये जो क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ से 0 एक्सक्लूड हो गया। तो सेक इन्वर्स का डोमेन है R डिफरेंस -1 to 1 और इसका रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π डिफरेंस π/2। तो इसमें भी देखिए कॉस इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये दोनों का जो रेंज है लगभग सेम है, जस्ट सेक इन्वर्स जो है वहाँ से -π/2 दैट इज π/2 को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि सेक π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। सेक π/2 का वैल्यू हम लोगों को डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इसलिए सेक इन्वर्स का जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है वहाँ से π/2 एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट टेन इन्वर्स का डोमेन है द सेट ऑफ रियल नंबर और इसका रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 π/2, ये है ओपन इंटरवल। ये भी साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स का देख लीजिए लगभग सेम है, उसमें साइन इन्वर्स में क्लोज्ड इंटरवल है और टेन इन्वर्स में ओपन इंटरवल है। कॉट इन्वर्स द डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट्स रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π, here 0 to π it is open interval.
कॉट इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का भी लगभग सेम है। कॉस इन्वर्स में क्लोज्ड इंटरवल और कॉट इन्वर्स में ओपन इंटरवल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल राइट डाउन दिस टेबल ऑन योर नोटबुक्स, क्योंकि ये जो टेबल है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क आउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन and its principal value. Okay.